Chapter 1, Crop Production and Management. This is the third and the last video of this chapter. In the previous video, we have studied about some agricultural implements, basic practices of crop production, and about manures and fertilizers. Now, what is the difference between manures and fertilizers? Fertilizers are inorganic soils. Manures, natural substances obtained by decomposition of cattle dung, human waste and plant residue. फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं और मैन्योर्स किससे मिलते हैं? कैटल डंक, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट्स रेसिड्यू के डीकम्पोजिशन से. सेकेंड, fertilizers are prepared in factories whereas manures are prepared in the fields. Fertilizers factories में बनते हैं और manures जो होते हैं वो fields में prepare किए जाते हैं. Farmers एक pit जैसा कुछ बनाते हैं और उसके अंदर plant waste, human waste डाल देते हैं और फिर उसको decompose होने के लिए छोड़ देते हैं. फिर उसका जब decomposition हो जाता है तो वो manures की तरह use किया जाता है. Third, does not provide humus to the soil. Fertilizers humus provide नहीं करते हैं soil को और manures provide a lot of humus to the soil. Manures इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो माइक्रोब्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं जो कि सॉइल में ह्यूमस ऐड कर देते हैं. फोर्थ, रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस. Manures relatively less rich in plant nutrients. Plant nutrients fertilizers में ज़्यादा होते हैं, manures में कम होते हैं. लेकिन fertilizers के यूज़ से जो soil होती है वो fertile हो जाती है, इसीलिए manures को ज़्यादा अच्छा माना गया है fields के लिए. Now let's know about another important practice or process of crop production. Irrigation. All living beings need water to survive. Water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seed of plants. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए. पानी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. डेवलपमेंट किसका? फ्रूट्स का, फ्लावर्स का और सीड्स का. Water is absorbed by the plant's roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearby 90% of water. Plants की root water absorb कर सकती हैं और water के साथ में वो fertilizers और minerals का भी absorption कर लेती हैं. Plants में 90% water होता है. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. Nutrients dissolved in water get transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. जो nutrients water में dissolved होते हैं वो plants के हर part में transport हो जाते हैं water के साथ साथ. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. Soil का moisture भी बना रहता है पानी से और crops भी healthy रहते हैं. The supply of water to crops at different intervals is called irrigation. Time to time जब crops में पानी डाला जाता है तो उसे irrigation बोलते हैं. इरिगेशन का टाइम और फ्रीक्वेंसी किस टाइम पे डाला जाता है और कितनी जल्दी या कितनी लेट डालना है ये सब क्रॉप्स पे डिपेंड करता है और कभी कभी ये सब सॉइल पे भी डिपेंड करता है. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू एंड सीजन टू सीजन, और सीजन के अकॉर्डिंग भी डाला जाता है इसमें पानी. इन समर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर. समर्स में क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए होता है क्योंकि समर्स में सॉइल और लीव्स में से वाटर जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है. सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. अब क्रॉप फील्ड के अंदर कहाँ कहाँ से पानी आ सकता है?
तो वेल्स में से आ सकता है, ट्यूब वेल्स में से आ सकता है, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स. Traditional methods of irrigation. The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the field. जो पानी वेल्स में, लेक्स में और कैनल्स में अवेलेबल है वो अलग अलग मेथड्स से फील्ड तक पहुंचाया जाता है. Cattle or human labor is used in these methods. So these methods are cheap but very efficient. Very less efficient. First method is moat, that is the pulley system. इसमें क्या होता है कि ट्यूबवेल में से ह्यूमंस ही पानी निकालते हैं और फील्ड में डालते हैं. तो ये मेथड चीप तो बहुत होता है पर इसमें मेहनत बहुत लगती है और ये बहुत कम एफिशिएंट होता है. चेन पंप, ये एक वाटर पंप के जैसा होता है जिसमें बहुत सारी सर्कुलर डिस्क प्लेस्ड होती हैं एक लंबी चेन पर, और उस चेन का एक पार्ट पानी के अंदर होता है और दूसरे पार्ट से वो पानी फील्ड तक पहुंच जाता है. थर्ड इज ढेकली. ढेकली में क्या होता है कि एक बकेट की हेल्प से फील्ड में पानी डालते हैं. तो ह्यूमंस ही करते हैं ये मेथड और इसमें भी बहुत मेहनत है और ये भी बहुत कम एफिशिएंट है और इससे पानी बहुत वेस्ट होता है, इसलिए अब पानी बचाने के लिए ये मेथड अब यूज़ नहीं किया जाता है. फोर्थ इज राहत लिवर सिस्टम. इस मेथड में एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि काउ, बफलो और कैमल्स. इसमें उन एनिमल्स को एक व्हील्स से कनेक्ट कर दिया जाता है और जैसे जैसे ये एनिमल्स चलते हैं वैसे वैसे वो व्हील रोटेट होता जाता है और पानी ट्यूबवेल में से बाहर आ जाता है. इरिगेशन के लिए जो पंप यूज़ किए उसको चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी होते हैं. द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज. दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट स्प्रिंकलर मेथड, सेकेंड ड्रिप मेथड. स्प्रिंकलर सिस्टम. This system is very useful on the uneven land where sufficient water is not available. जहाँ पे लैंड अनइवन होता है, जहाँ पर पानी सफिशेंट अवेलेबल नहीं होता है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. मेन पाइपलाइन के ऊपर रेगुलर इंटरवल्स में एक और पाइप्स जोड़े जाते हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं और जिनके ऊपर एक नोजल होती है जो कि रोटेट करती रहती है. When water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of a pump, तो वो पानी फील्ड्स पर स्प्रिंकल हो जाता है जैसे कि बारिश हो रही हो. और ये स्प्रिंकल मेथड जो है ये सैंडी सॉइल के लिए बहुत यूज़फुल होता है. ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि वाटर डायरेक्टली ड्रॉप बाय ड्रॉप करके रूट्स तक पहुंच जाता है और ये सिस्टम प्लांट्स के लिए जो कि फ्रूट्स वाले होते हैं, गार्डन और ट्रीज के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड होता है. द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप. वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल. और क्योंकि पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट्स में जा रहा है तो पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है इस मेथड के अंदर. और जिन एरियाज़ में वाटर की कमी होती है वहाँ के लिए तो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें पानी वेस्ट भी नहीं हो रहा, ज़्यादा लेबर भी नहीं लग रहा और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स. इन अ फील्ड मैनी अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स. क्रॉप्स के साथ साथ में दूसरे पेड़ भी जो नहीं चाहिए होते हैं उस फील्ड में वो ग्रो हो जाते हैं. तो अब जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को मिलने चाहिए वो उनको भी मिलने लग जाते हैं. दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, वाटर
और जो भी सप्लाई है, फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर्स हैं, सब में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसीलिए वीड्स को हटाना इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर जो भी है वो सब क्रॉप्स को मिले और दूसरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो। तो क्रॉप प्रोडक्शन में वीडिंग भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। अब इसको किस किस तरह से हटा सकते हैं? फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, डायरेक्टली हाथ से हटा सकते हैं। सेकेंड, कटिंग विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी, प्लांट ग्राउंड लेवल तक उसको काट सकते हैं खुरपी की हेल्प से। थर्ड इज वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स केमिकल्स होते हैं जो फील्ड में स्प्रे किए जाते हैं, जो कि क्रॉप्स को हार्म नहीं करते हैं, सिर्फ वीड्स को हार्म करते हैं। वीडीसाइड्स को पहले जितना ज़रूरी होता है उतने पानी में डाइल्यूट किया जाता है, फिर उसको फील्ड में स्प्रे करते हैं। बीड्स के सीड फॉर्मेशन और फ्लावरिंग से पहले वीडीसाइड को स्प्रे किया जाता है, और स्प्रे करते टाइम फार्मर्स की हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उनको बहुत ध्यान से वो केमिकल्स यूज़ करने चाहिए। हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप्स मेच्योर हो जाते हैं फिर उसकी कटिंग की जाती है तो उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। या तो क्रॉप्स को पुल किया जाता है, पुल आउट, या फिर उसको ग्राउंड लेवल पर काट दिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months for a cereal crop to mature. Harvesting in a country is either done manually by sickle or by a machine called harvester. हार्वेस्टेड क्रॉप्स में ग्रेन सीड्स को शेफ में से सेपरेट किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग एक मशीन से करी जाती है जिसको कंबाइन बोलते हैं, और ये कंबाइन जो है वो हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों की जैसे काम में करता है। जिन फार्मर्स के पास कम लैंड होता है वो ग्रेन्स और शेफ की सेपरेशन विनोइंग की प्रोसेस से करते हैं। The last process is storage. Storage of produce is an important task. जो क्रॉप प्रोड्यूस हुए हैं उसको स्टोर करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है। If the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. The fresh crops has more moisture. फ्रेश क्रॉप्स में क्या होता है कि मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसलिए अगर उनको बिना ड्राई किए स्टोर कर दिया तो वो स्पॉइल भी हो सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिजम्स भी उन पे लग सकते हैं, और वो अपनी जर्मिनेटिंग कैपेसिटी भी लूज़ कर सकते हैं। इसीलिए सीड्स को स्टोर करने से पहले उन्हें धूप में सुखाया जाता है ताकि उनमें से मॉइस्चर सारा उड़ जाए। इससे उन पर बैक्टीरिया, फंगाई और इंसेक्ट्स नहीं लगते। फार्मर्स ग्रेन्स को जूट बैग्स या फिर मेटेलिक बिन्स में सेव करते हैं, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है सीड्स तो उसको सिलोस या फिर ग्रेनरीज में भी स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि उन पर पेस्ट या फिर रैट्स और इंसेक्ट्स नहीं लगते। और अगर घर पे ही स्टोर करना है तो सूखे नीम के पत्ते बहुत यूज़फुल होते हैं, और अगर लार्ज क्वांटिटीज़ के सीड्स स्टोर करने हैं तो गोडाउन्स में या फिर स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स उसके लिए ज़रूरी होते हैं। With this, we are done with chapter 1. If you have any queries, please ask me in the comment box. Thank you.